Hello students, today we are going to start third part of chemical reactions and equations. In this part, we will be discussing about first review of previous lectures, then reduction and oxidation reaction, which is left, then corrosion and rancidity. Review of previous lecture. So far we have discussed about chemical reaction, reactant, product and chemical equation, and how to balance the chemical equations through heat and trial method. Then types of reactions. Out of 5 reactions, we have discussed 4. First one, combination reaction, then decomposition reaction, then displacement reaction, and double displacement reaction, and last one remaining, that is redox reaction, reduction and oxidation reaction. So we are going to discuss that in detail. Redox reaction is composed of two words, reduction and oxidation. It is made up of two reactions, reduction and oxidation, red for reduction and ox for oxidation, which makes redox reaction. Both of these two reactions occur simultaneously. आप ये कंफ्यूजन में न रहे कि सिर्फ रिडक्शन होगा या सिर्फ ऑक्सीडेशन होगा. अगर कहीं रिडक्शन हो रहा है तो वहां ऑक्सीडेशन जरूर होगा. So we are going to see first oxidation reaction. It is defined as addition of oxygen to a substance or removal of hydrogen from a substance. These two definitions are most important for you, but apart from these two, 3 more definitions are there which are required for NTSC etc. competitive exams, but this is sufficient for board exam. That oxidation is defined as addition of oxygen to a substance and removal of hydrogen from a substance. Oxidation is defined as addition of oxygen to a substance, मतलब किसी substance पे oxygen का जोड़ना, and removal of hydrogen from a substance, मतलब किसी substance से hydrogen का निकलना, इसे हम लोग oxidation कहते हैं. These two are most important for you, but apart from these two, 3 more definitions are there which are useful for your competitive exams like NTSC and other competitive exams. First one is removal of electron from a substance. अगर किसी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो उसे भी ऑक्सीडेशन कहते हैं. इसे हम लोग थर्ड चैप्टर में डिटेल में देखेंगे 10th क्लास का. देन रिमूवल ऑफ मेटल और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम ए सब्सटेंस, मतलब किसी जैसे हाइड्रोजन किसी सब्सटेंस से निकलता है वो क्या है, एक तरह का इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है. उसी तरह इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का निकलना या मेटल का वहां से निकलना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं. और इसके जस्ट रिवर्स, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू ए सब्सटेंस. दीज 3 definitions are required for competitive exam, so you should be careful about first 2 which are very important, and these 3 are required for competitive exams only. Reduction, in the similar way, just reverse the first 2 definitions, or all definitions are just reverse of oxidation, because reduction is just reverse of oxidation. Therefore all definitions should be reversed. For example, in case of oxidation, we have studied removal of hydrogen from a substance is known as oxidation. So here it will be what? Addition of hydrogen to a substance is reduction. In the similar manner, in oxidation we have seen addition of oxygen to a substance is known as oxidation. So here removal of oxygen from a substance is reduction. क्योंकि reduction oxidation का बिल्कुल रिवर्स होता है, इसलिए सारे definition को रिवर्स कर दीजिए. So first two one are very important for you. Apart from these 2, 3 more are there which are required only for competitive exams. So you should take care of your target. If you are aspiring for only board exams, so you should practice only these 2. Or if you are trying for competitive exams and you are aspiring for science in higher classes, then you move for other 3 also. For example, third one is एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ए सब्सटेंस, मतलब वहां ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए सब्सटेंस था, तो उसके जस्ट उल्टा क्या हो गया, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ए सब्सटेंस इज नोन एज रिडक्शन. इन द सिमिलर मैनर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टू ए सब्सटेंस इज नोन एज रिडक्शन. ये भी ऑक्सीडेशन के जस्ट रिवर्स है. इसी तरह रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम ए सब्सटेंस इज नोन एज रिडक्शन. सो दीज आर द डेफिनेशंस ऑफ द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. Next one is oxidizing agent, which is also known as oxidant. तो oxidizing agent क्या है, जो ऑक्सीडेशन में मदद करता है, उसे oxidizing agent कहते हैं. जैसे common oxidizing agent क्या हो गया, ऑक्सीजन, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन में मदद करता है. So the substance which gives oxygen for oxidation is known as oxidizing agent.
या द सब्सटेंस विच रिमूव हाइड्रोजन फॉर ऑक्सीडेशन इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट कहते हैं. नाउ reducing agent it is also known as reductant. तो जो रिडक्शन में हेल्प करे उसे reducing agent कहते हैं. So the substance which gives hydrogen for reduction is known as reducing agent, or the substance which removes oxygen from a substance for reduction is known as reducing agent. So these are reductant and oxidant. Now we are going to see this by one example which is popular reaction for you, that is Mg plus O2 equal to MgO. तो यहाँ पर ध्यान दीजिए Mg और MgO में क्या डिफरेंस हो रहा है. अब देखिए तो Mg से MgO में गए तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो ये क्या हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज व्हाट, ऑक्सीडेशन. और उसी तरह O2 से MgO जाने में, मतलब ऑक्सीजन से MgO जाने में क्या हुआ, वहां एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. अगर आप पहले दोनों डेफिनेशन याद करें तो यहीं पर आपको मुसीबत आ सकती है. आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यहाँ एडिशन हो रहा है, जो कि आपके बुक्स में नॉर्मली दो ही डेफिनेशन दिया हुआ है. तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, Mg से MgO जाने में क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ऑक्सीडेशन हुआ. और O2 से MgO जाने में क्या हुआ, मेटल का एडिशन हुआ. मेटल का एडिशन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है. सो नाउ यू कैन सी हियर दैट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज अकरिंग फ्रॉम Mg to MgO, so it is oxidation, and addition of electropositive element to oxygen gives MgO, so that is what, reduction. By definition you have studied so far. So see, one point is here that the substance which undergo oxidation is popularly termed as oxidized substance. जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे हम लोग पॉपुलरली क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कह देते हैं. इसी तरह द सब्सटेंस which undergo reduction is known as reduced substance. तो यहाँ से आप ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस और reduced सब्सटेंस ध्यान दीजिए. जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कहते हैं, और जिसका रिडक्शन होता है उसे हम लोग reduced सब्सटेंस कहते हैं. Now same reaction here. See, now what is the oxidized substance? तो क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस यहाँ जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा, मतलब क्या, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस इज Mg. और रिड्यूस्ड सब्सटेंस क्या होगा, जिसका रिडक्शन हो रहा, तो रिड्यूस्ड सब्सटेंस इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन वर्ड्स में लिखिए या O2 लिखिए, कभी भी O आप नहीं लिखेंगे, बिकॉज वी कैन नॉट चेंज द फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. नाउ नेक्स्ट वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट, जो ऑक्सीडेशन में मदद करे. तो यहाँ तो पॉपुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीजन ही है, जो कि ऑक्सीडेशन में मदद कर रहा है. Mg को MgO जाने में किसने ऑक्सीजन दिया, तो O2 ने दिया, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हुआ, O2 हुआ. इसी तरह रेड्यूसिंग एजेंट O2 रेड्यूस हुआ, O2 से MgO बनने में O2 का रिडक्शन हुआ. क्यों, क्योंकि वहां मेटल आकर जुड़ गया. कौन सा मेटल, Mg. सो रेड्यूसिंग एजेंट इज और रिडक्टेंट इज Mg. तो इस तरह से देखिए, ये 4 पॉइंट आपको सीबीएसई में पूछ लेता है या स्टेट एग्जाम्स में पूछ लेते हैं. यही 4 पॉइंट पूछे जाते हैं, इनको आप केयरफुली ध्यान दीजिए. और एक बात आप और ध्यान दें कि जितने ये चारों आंसर है, ये चारों लेफ्ट हैंड साइड से ही आएंगे, मतलब रिएक्टेंट साइड से ही आएंगे. कभी भी इसके लिए आपको प्रोडक्ट साइड जाने की जरूरत नहीं है. और एक आप यहाँ ध्यान दीजिए कि ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस Mg है और रेड्यूसिंग एजेंट भी क्या है, Mg है. इसका मतलब ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस इज इक्वल टू व्हाट, रेड्यूसिंग एजेंट. एंड रेड्यूस्ड सब्सटेंस और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखिए, तो ये भी क्या हो गया, एक दूसरे से इक्वल है. मतलब ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस इज इक्वल टू रेड्यूसिंग एजेंट एंड रेड्यूस्ड सब्सटेंस इज व्हाट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इसको आप शॉर्टकट में याद रखने के लिए और याद रखिए OR, और ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस इक्वल टू रेड्यूसिंग एजेंट. इन द सिमिलर मैनर reduced substance is equal to ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो और से आप याद रखिए OR से. नेक्स्ट एग्जांपल हियर, CO plus H2 is giving what, Cu plus H2. तो CO से Cu बनते हुए देखिए यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है. सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट, सोचिए क्या होता है. तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किसे कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं. तो CO से Cu जाने में ऑक्सीजन लॉस हुआ, ये रिडक्शन हुआ. इसी तरह H2 से H2O जाने में ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट, ऑक्सीडेशन. आप देखिए, तो यहाँ पर आप सोचिए, आपको ऑक्सीडाइज सब्सटेंस क्या हुआ, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, H2. रिड्यूस सब्सटेंस क्या हुआ, जिसका रिडक्शन हो रहा है, जहां से ऑक्सीजन मिस किया है, तो क्या हुआ, CO. तो इस तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हुआ, जिसने ऑक्सीजन सप्लाई किया हो, तो CO. इसी तरह रेड्यूसिंग एजेंट, जिसने ऑक्सीजन लिया हो दूसरे का, उसने क्या किया हुआ, रिडक्शन में मदद किया हो, तो क्या हो गया, रेड्यूसिंग एजेंट H2 हो गया. आप ऐसे ध्यान रखिए कि ऑक्सीडाइज सब्सटेंस इज इक्वल टू व्हाट, reducing agent, and reduced substance is equal to oxidizing agent. तो और आपका क्वेश्चन क्या होगा, फास्ट होगा और शॉर्टकट होगा. तो ऐसे आप प्रैक्टिस रख सकते हैं. देखिए कितना इजी है, थोड़ा सा ट्राई कीजिए,
this is very conceptual and little bit tricky, therefore it becomes tough for some students. But if you are practicing with trick in this way, so you will find it very easy. नेक्स्ट रिएक्शन इज H2S प्लस Cl2। तो यहां देखिए H2S से सल्फर बना, H2S से सल्फर बना, तो H2S से जब सल्फर बना तो क्या हुआ, हाइड्रोजन का लॉस हुआ। सो लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट, दैट इज नथिंग बट व्हाट, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हो गया। इसी तरह Cl2 से HCl बना, मतलब किसका एडिशन हुआ, हाइड्रोजन का एडिशन हुआ। तो एडिशन इज ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट, रिडक्शन। तो आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचान लिए तो आंसर आपको चारों मिल जाएंगे। क्या ऑक्सीडाइज सब्सटेंस क्या होगा, H2S। रिड्यूस सब्सटेंस क्या होगा, Cl2। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हुआ, Cl2। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, H2S। आप देखिए चारों आंसर। अगर थोड़ा सा ट्रिकी वे से देखें तो ये क्या होगा, आपके लिए काफी इजी है। इसी तरह देखिए जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन देखें कार्बन कोक के साथ, तो क्या हो रहा है, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, Zn प्लस CO बन, कार्बन से CO बनना, कार्बन मोनोऑक्साइड बनना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, इसका मतलब क्या, वहां ऑक्सीडेशन हुआ। तो इस तरह से क्या हो गया आपका, ये यहाँ पर C का ऑक्सीडाइज सब्सटेंस हो गया और रेड्यूस सब्सटेंस क्या हुआ, ZnO। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, ZnO, और रेड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, कोक, C। आप देखिए, you have got it. Then another one which has been asked sometime as tough questions, उसको देख लेते हैं। MnO2 है और HCl से जब रिएक्शन करते हैं तो क्या देता है, MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O देता है। तो यहाँ देखिए जब MnO2 से आप MnCl2 में जाइए तो यहाँ ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ। ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाता है, याद कीजिए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज, यस व्हाट, दैट इज रिडक्शन। तो MnO2 से MnCl2 जाने में रिडक्शन हो गया और HCl से Cl2 को बनना हाइड्रोजन का लॉस। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज व्हाट, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मिल गया, तो आपको चारों आंसर इजीली मिल जाएंगे। ऑक्सीडाइज सब्सटेंस HCl, reduced substance MnO2, oxidizing agent MnO2, and reducing agent HCl. Now, effect of oxidation in our everyday life. Oxidation has damaging effect on food as well as on metals. ये oxidation हमेशा useful ही नहीं है। जैसे क्या है, इसका इफेक्ट कहां-कहां हमारे लिए हार्मफुल है। इट्स इफेक्ट ऑन मेटल्स इज नोन एज corrosion and on food is known as rancidity, which are harmful for us. But at some time, you cannot neglect its importance as well, because digestion is oxidation process. Without digestion, we cannot survive. So, oxidation or this redox reaction has importance as well. But at the same time, some harmful effects are also there. For example, like corrosion and rancidity. So, we are going to see about corrosion. So it is the process in which metals are eaten up gradually by the action of air, moisture or acid on their surface. इसमें क्या होता है, मेटल का सरफेस पर लेयर बाय लेयर डिग्रेडेशन होता है by air, moisture और एसिड के द्वारा on the surface of the metal. It is caused by the oxidation of the metal by the oxygen present in the air. ये कैसे होता है, जो एयर में ऑक्सीजन मौजूद है उसी ऑक्सीजन से हमारा मेटल अभिक्रिया करके क्या करता है, आपको वहां से ये मेटल को लेयर बाय लेयर क्या करता है, खराब करते जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोजन। तो सारे मेटल में जो ये रिडॉक्स रिएक्शन या हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन होता है मेटल्स पर, उसको हम लोग कॉमन नेम क्या देते हैं, कोरोजन देते हैं। लेकिन ये कोरोजन आयरन के केस में एक स्पेसिफिक नेम हम लोग दे देते हैं, दैट इज नोन एज रस्टिंग। और रस्टिंग देने के नाम के पीछे इसका कारण क्या है, क्योंकि जो आयरन का आप मेटल देखते हैं कुछ समय के बाद अगर हवा में छोड़ दिया जाए विदाउट पेंटिंग, तो उस पर भूरे रंग के अगर उंगली से छुएंगे तो आपको उंगली में लगेंगे, मतलब लेयर बाय लेयर वो खराब हो रहा है। नाउ reaction for the rusting. See, when iron is reacting with oxygen and moisture, that is H2O, then it is giving what? Rust. Rust का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3.XH2. XH2 मतलब क्या, वहां मॉइस्चर के मॉलिक्यूल उससे जुड़े होते हैं। X वेरिएबल नंबर ऑफ, X क्या शो कर रहा है, वेरिएबल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, 2, 4, 6 ऐसे वहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स वेरिएबल होते हैं। तो इस वजह से क्या है, ये रस्ट का फॉर्मूला क्या हो गया, Fe2O3.XH2। और जनरली हम लोग Fe2O3 मतलब
फेरिक आयरन ऑक्साइड, आयरन थर्ड ऑक्साइड जो है, वही फॉर्मूला क्या होता है रस्ट का। और इसका कलर कैसा होता है, रेड ब्राउन कलर का होता है। मैंने रेड ब्राउन कलर भी सेम कलर से रिप्रेजेंट किया है, तो आप इस कलर का आप फिंगर से अभी तक नहीं देखे हैं, तो कहीं भी आयरन का कोट कुछ महीनों से बाहर पड़ा हुआ है आपके घर के बाहर, उसे टच करके देखें, या अपने घर का अगर आयरन का गेट है उसे टच करके देखें, तो फिंगर में आपको रेड ब्राउन रस्ट के मिलते जाएंगे। और ये एक बार रस्ट, ये रिएक्शन होने के बाद रुकता नहीं है, ये लेयर बाय लेयर इटन अप। इटन अप मतलब क्या है, लेयर बाय लेयर ये उसको खराब करते जाता है। एक लेयर हुआ, उनको हटा दिया, फिर दूसरे लेयर के साथ रिएक्शन करते जाता है। सो कोरोजन इज वेरी वेरी हार्मफुल, एंड कोरोजन टर्म इन द केस ऑफ आयरन इज स्पेशली प्रोनाउंस्ड एज रस्टिंग। तो रस्टिंग आप सारे मेटल में यूज नहीं करेंगे, ये स्पेशल केस किस केस में कहते हैं हम लोग, आयरन के केस में ही कहते हैं। Corrosion weakens the iron and steel objects and it leads to monetary loss as well as accidents। मतलब ये डे बाय डे इतने आप देखिए, रेलवे ट्रैक, ट्रेन, ब्रिजेस, जितने हैं, बिल्डिंग्स, इतने जगह आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं और स्टील ऑब्जेक्ट्स हैं। स्टील भी आयरन का बना हुआ है। तो इस तरह से देखिए, अगर उनमें ये कोरोजन हम लोग छोड़ दे, ऐसे होते रहे, तो हमें डे बाय डे मनी का लॉस है, और साथ में अगर पुल टूट जाए, रेलवे ब्रिज टूट जाए, अगर रेलवे का ट्रैक टूट जाए, तो कई सारे जाने जा सकते हैं। So it will lead to accident also. So it is very very important to stop it. Then how you will stop it? कैसे स्टॉप करेंगे? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टेक्निक, जो आप साइकिल, स्कूटर, बाइक, ट्रक, ट्रैक्टर जो भी देखते हैं, हम लोग टाइम टू टाइम ऑयल और ग्रीज लगाते हैं जो आयरन पॉट्स हैं। क्यों? क्योंकि वहां मॉइस्चर रुकेगा नहीं, मॉइस्चर रुकेगा नहीं तो कोरोजन होगा नहीं। इसी तरह पेंटिंग करते हैं, पेंटिंग करने से वहां वाटर रुकेगा नहीं, वाटर जरूरी है कोरोजन के लिए। आप जानते हैं ऑक्सीजन और मॉइस्चर जरूरी है। तो पेंटिंग और ऑयल या ग्रीज करने से वहां मेटल, हमारा मेटल पर क्या होगा, जब ऑयल, ग्रीज और पेंटिंग लगा दिया तो वहां मॉइस्चर रुकेगा नहीं और इस तरह से कोरोजन होगा नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है गैल्वेनाइजेशन। हम लोग आयरन पॉट है उस पर जिंक का कोटिंग कर देते हैं, थिन लेयर ऑफ कोटिंग चढ़ा देते हैं हम लोग जिंक का, उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, जिसे हम लोग थर्ड चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है, तो हम लोग देखेंगे। सो दीज आर द स्टेप्स फॉर preventing the corrosion. The next point is rancidity. Oxidation has damaging effect on foods containing fat and oil. The condition produced by aerial oxidation, aerial oxidation मतलब जो ऑक्सीजन एयर में मौजूद है। So the condition produced by the aerial oxidation of fats and oils in foods marked by unpleasant smell and taste is known as rancidity। मतलब जो एयर में ऑक्सीजन मौजूद है, फैट या ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स जो हमारे हैं, जिनमें अनप्लीजेंट स्मेल आ जाता है और उनका टेस्ट चेंज हो जाता है, उसी को हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं। उसे हिंदी में हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। और ये देखिए, वहां टॉक्सिक सब्सटेंसेस, पॉइजनस सब्सटेंसेस का प्रोडक्शन होने लगता है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए क्या हो जाता है, डेंजरस हो जाता है। इट इज पॉइजनस फॉर आवर हेल्थ। देन हाउ टू स्टॉप द रेंसिडिटी? रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय मेनी वेज। फर्स्ट वन, बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट नाम से ही पता चल रहा है, ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा हम लगा दे कोई केमिकल जो कि ऑक्सीडेशन को रोक ले, उसी को क्या कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। नाम से ही क्लियर है। तो देखिए, द केमिकल कंपाउंड्स यूज्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड आर नोन एज एंटीऑक्सीडेंट्स, एंड पॉपुलर एंटीऑक्सीडेंट्स आर BHT एंड BHA। आप शॉर्टकट ही नाम याद रखिए, काफी है आपके लिए। इस तरह फुल फॉर्म BHT का ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन और BHA का ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीइनिसोल। The next point, which is very common, for example, by packaging fat and oil containing food in nitrogen gas। जैसे जितने आपको चिप्स वगैरह, अंकल चिप्स, जितने आपको या कुरकुरे वगैरह है, वो एक गैस के अंदर में पैक है। क्यों? क्योंकि वहां पर नाइट्रोजन गैस क्या करता है, इनर्ट गैस है, और इनर्ट गैस में हम लोग जब पैक कर देते हैं तो वहां ऑक्सीजन के टच में आएगा नहीं, ऑक्सीडेशन होगा नहीं, हमारा फूड रेंसिड होगा नहीं। इस तरह से रेंसिडिटी को हम लोग स्टॉप कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज बाय कीपिंग फूड एट लोअर टेम्परेचर। जब हम लोग टेम्परेचर लो कर देंगे तो वहां रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो रेंसिडिटी कैन बी लोवर्ड और स्लोड और अवॉइडेड। सो the rate of oxidation will decrease at lower temperature and then rancidity can be avoided. Then fourth point, by keeping food materials in airtight container। अगर हम लोग क्या करते हैं, फूड मटेरियल्स को एयर टाइट कंटेनर में पैक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां ऑक्सीजन का लिटिल एक्सपोजर हो जाएगा। जब एयर से हमारा क्या होगा, टाइटली पैक्ड हो गया, जितना वहां ऑक्सीजन थोड़ा सा उस
अगर डब्बे में रहेगा उससे थोड़ा सा तो रिएक्शन होगा, लेकिन फर्दर ऑक्सीजन अवेलेबल ही नहीं रहेगा, तो वहां ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं। ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, इस तरह क्या होगा, only little exposure will be there with oxygen and little food material will react or negligibly, and then rancidity can be avoided. Then fifth point and last point is by keeping food materials away from the light. लाइट से क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है। अगर हमने लाइट को रोक दिया, डार्क रूम में हमने रख दिया, ये डार्क प्लेस पर रख दिया, तो रेंसिडिटी क्या होगा, स्लो डाउन हो जाएगी। सो दीज आर द वेज फॉर द preventing the rancidity. So this is last point of this chapter. This is for today, and you should see previous lectures, and link for that is provided in the description box. So please see that, and you should like and subscribe it so that you can get the latest videos